ایک بادشاہ بڑا سخی تھا، اس کے اپوزٹ اس کی بیوی بہت کنجوس تھی. ایک مچھوارا ندی میں جال ڈالا تو ایک مچھلی ملی. تو مچھوارا سوچا کہ اگر اس کو وپریت میں بیچیں گے نا مچھلی کو چوک پر تو قیمت نہیں ملے گی، بادشاہ کو دے دیں گے تو انعام ملے گا. بادشاہ کے دربار میں مچھلی لے کر پہنچا، آواز لگائی حضور. تو بادشاہ نکلا تو اس کے پیچھے پیچھے اس کی بیوی بھی آئی کہ دیکھے کون آیا ہے. دیکھا مچھوارا ہے. تو مچھوارا بولا کہ حضور یہ جال ہم ندی میں ڈالے تھے، یہ مچھلی ملی، بہت خوبصورت مچھلی ہے، ہم سوچے بازار میں نہیں بیچیں گے، آپ کے نظر کریں گے. تو بادشاہ خوش ہو گیا، وزیر کو بولا کہ ٹھیک ہے یہ نہیں 200 درہم انعام دے دے. کتنا؟ ارے بولو بھائی، 200 درہم انعام دے دو. تو بادشاہ کی بیوی تو کنجوس تھی، بولی تو دماغ خراب ہے گئی ہو نا کی. تو بادشاہ بولا کیا؟ بولا کہ بادشاہ آپ کو بنایا کون؟ بولے اللہ کا بندی ہوا کیا، بولو نا. بولا اتنی سی چھوٹی سی مچھلی کی قیمت 200 درہم، ہم کو مچھلی نہیں چاہیے، مچھلی واپس کیجئے، پیسہ لیجئے. تو کبھی کبھی آدمی بیوی کے ہاتھوں بھی مجبور ہو جاتا ہے. ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ زیادہ موڑی مت ہلائی، ہماری ماں بہنیں دیکھ رہی ہے، کل کا ناشتہ ہی بند ہو جائے گا. پہلے خوب جلسات موڑی ہلائی ہوتی. دمشق کی جامع مسجد میں ایک عالم صاحب تقریر کر رہے تھے کہ نوجوانوں، مسلمانوں، جب کوئی مسلمان نماز کا ارادہ کرتا ہے تو 2-4 شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا کہ اس کو نماز پڑھنے مت دو. جب کوئی مسلمان روزے کی نیت کرتا ہے تو 2-4 شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا کہ اس کو روزہ رکھنے مت دو. اب وہ عالم صاحب کہہ رہے تھے کہ لیکن مسلمانوں سنو، جب کوئی مسلمان صدقے کی نیت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی نیت کرتا ہے، تو 70 شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. کتنا؟ تو امام صاحب بولے کہ اس مجمع میں ہے ایسا کوئی نوجوان جو 70 شیطان کو ہرا دے، آج صدقہ کر کے دکھائے. ایک نوجوان کھڑا ہوا، بولا کہ حضرت شیطان کی ایسی کی تیسی، ہم صدقہ کرے گا. بولا جا ٹکا چھو. بولے نہیں ٹکا نہیں جے گھوروں آٹا چھے مور. بولا جا. گھر گیا، آٹے کا بورا ہے، آٹا کا بورا کھولا، ایک جھولا میں آٹا کسا، فل جھولا کسا، اور لے کے جیسے ہی گھر سے نکل رہا تھا آگے بیوی آ کے کھڑی ہو گئی. بولا کیجئے؟ بولا آٹا جائے. بولا کون جائے؟ بولے صدقہ کروا جائے. بولے کام دھندا تو کرتے نہیں ہیں اور اوپر سے رکھا ہوا آٹا لے کے صدقہ کرنے جا رہے ہیں، جو رکھیے لے آ آٹا رکھ دیا. مسجد میں آ کے بیٹھ گیا تو اس کے بغل والا لڑکا ایک آدمی پوچھا کہ کیا ہوا، صدقہ کر دیے؟ بولا کہ بھیا ہم پوری تیاری میں تھے، پوری تیاری میں کر کے جیسے ہی صدقہ کرنے نکل رہے تھے بیچ میں شیطان کی اماں آ گئی، بس وہی ہار گئے. کبھی کبھی بیوی کے ہاتھوں لوگ مجبور ہو جاتے. تو بادشاہ بولا کہ دیکھو یہ میری شان کی خلاف ہے، میری بیوی، ہم نے اس کو کچھ دیا، اگر اس سے لے لیں گے تو اس کا دل چھوٹا ہو جائے گا، یہ میری شان کے خلاف ہے. بیوی بولی کہ نہیں ایک آئیڈیا ہے پیسہ واپس کرنے کا، آپ کی شان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. بولے کیا آئیڈیا ہے؟ تو بیوی سمجھائی کہ دیکھیے ان سے پوچھئے کہ یہ مچھلی نر ہے کہ مادہ ہے. وہ بولے گا نر ہے تو آپ بولیے گا ہم کو نر مچھلی نہیں، ہم کو تو مادہ مچھلی کھاتے، مچھلی لے جاؤ پیسہ ریٹرن کرو. اگر وہ بولے کہ ہم مادہ ہے تو آپ بولیے گا ہم تو نر مچھلی کھاتے ہیں، مادہ نہیں کھاتے، بس پیسہ ہے وہ واپس. تو بادشاہ بولا کہ بابو ایسا کرو یہ مچھلی نر ہے کہ مادہ ہے؟ مچھوارا سے پوچھ رہا. تو مچھوارا بھی بہت چالاک تھا، بولا کہ حضور یہ مچھلی نہ نر ہے نہ مادہ ہے، بیچ والی مچھلی ہے. بادشاہ خوش ہو گیا، بولا 200 درہم اور اس کو انعام دو. کتنا ہوا؟ بادشاہ کی بیوی سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ 200 ریٹرن کے چکر میں تو یہ 400 دے دیا. یہ مچھوارا سلام کیا، دربار سے جانے لگا تو دیکھا دربار میں 1 روپیہ کا سکہ گرا ہوا تھا. تو یہ مچھوارا اٹھایا، چوما، پاکٹ میں رکھ لیا. تو اس کی بیوی کی نظر پڑ گئی بادشاہ کی، تو انہوں نے اپنے شوہر بادشاہ سے کہا دیکھیے آپ اتنا انعام دیے پھر بھی اس کو صبر نہیں ہے، وہ دربار سے چوری کر کے پیسہ لے کر جا رہا، بلائیے پیسہ چھینیے جیل میں ڈالیے. بادشاہ آواز دیا بھائی ادھر آؤ. مچھوارا پھر لوٹ کر آیا، بولا کیا اٹھایا؟
बोला हुजूर ये सिक्का है। बोला काहे चोरी किया? बोला हुजूर हम चोर नहीं हैं, ये सिक्का में आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, आपका चेहरा है, अगर वो गिरा हुआ रहता, कोई पैर दे देता तो ये बेअदबी ना होती। आप मेरे बादशाह हैं, हम इसको उठा के चूम लिए हैं, पॉकेट में रखे हैं, अपने तिजोरी में रखेंगे। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दो। हम मांगना नहीं जानते, हम मांगते ही नहीं। मांग कर देखो तो सही, मांग कर देखो तो सही। देखो इंशाअल्लाह अल्लाह अगर तकदीर ना बदल दे तो फिर कहना, अल्लाह तकदीर बदल देगा। मांग कर देखो मेरी माँ बहनों, अल्लाह से मांगना सीखो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। कुर्बान दे। और एक बात और रखनी है, मेरा अल्लाह सखी है। अल्लाह क्या है? अरे बोलो भाई, सखी किसे कहते हैं? सखी उसे कहते हैं जो किसी को महरूम ना करे। जो भी आया ले जाओ, जो भी आया ले जाओ, जो भी मांगा दे दो, भूखा आया खिला दो, प्यासा आया पिला दो, जो आया ले जाओ, उसे सखी कहते हैं। और मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को दोस्त रखता है। अल्लाह सखी है, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। अभी जनाब दिल खैराबादी साहब पढ़ रहे थे, बहुत सारे नौजवान हमारे 500 का नोट दे रहे थे, कोई 100 दे रहा था, कोई 10 दे रहा था, कोई 50। दो खर्च करो, खर्च करो। सूरह निसा पढ़ो, सूरह निसा पढ़ो, कुरान खोलो, सूरह निसा पढ़ो। जो दौलत जिसको अल्लाह ने दिया है, पैसा जिसको अल्लाह ने दिया है, माल जिसको अल्लाह ने दिया है, वो जमा करके खाली रखता है, खर्चा नहीं करता है, खाली जमा करता है। ठक 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 ठक। उसके बारे में अल्लाह कहता है इसके लिए दर्दनाक अजाब है मेरे यहां। बखील के लिए दर्दनाक अजाब है। बखीलेर 4 কোয়ালিটি। কত কোয়ালিটি আছে বলুন তো? আরে বলো না ভাই, কত কোয়ালিটি আছে? 4 কোয়ালিটি। 4। पहला क्वालिटी बखील, কত भेल? अरे कितना हुआ बोलो ना? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। 4 हुआ कि नहीं हुआ? बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती, कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। सखी बनो। अल्लाह ने दौलत दिया है, बीवी के पीछे खर्च करो। अल्लाह ने दौलत दिया है, बच्चों के पीछे खर्च करो। अल्लाह ने पैसा दिया है, रिश्तेदारों के पीछे खर्च करो। अल्लाह ने पैसा दिया है, मस्जिद में खर्च करो। अल्लाह ने पैसा दिया है, दीन के कामों में खर्च करो, मदरसे में खर्च करो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें माल दिया, पैसा दिया, दौलत दिया, तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा? जरा बताओ भाई, सारा मजमा करेंगे? अरे करेंगे बोलो ना, हाथ उठाएंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सारा मजमा करेंगे। कहाँ करेंगे? घर में। हाँ तो बीवी के पीछे भी खर्च करना सवाब है ना। बच्चों के पीछे भी खर्च करना, ये भी एक सदका है। बीवी बाल बच्चों के पीछे माल खर्च करना, ये भी सदका है। अच्छा खाना, पैसा खर्चा करके गोश्त ला देना, अच्छा खाना घर में बना दिए, बीवी को खिलवा दिए, बच्चे को खिला दिए, ये भी सदका में शुमार होगा। उलमा फरमाते ये भी सदका है तुम्हारे लिए, इसमें भी तुम्हारे लिए सवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसा बना दिए, ये सदका जारिया हो गया। मस्जिद बना दिए, सदका जारिया हो गया। मर गए लालकुड़ी में, जब तक ये मस्जिद कायम रहेगी अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। अब देखिएगा, जो सखी है वो सखावत करके रहेगा। दिलवाओ रहे या ना रहे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाइए इतने बड़े सखी थे। क्यों ना हो, इमामुल अंबिया जो ठहरे, वजह कायनात जो ठहरे, अल्लाह ने महबूब बनाए। कुर्बान जाइए, ओहो, जो भी आता, सवाली आता, हाजतमंद आता, जरूरतमंद आता, या रसूल अल्लाह भूखा हूँ, खाना खा लो। या रसूल अल्लाह बेटी की शादी है, मदद चाहिए। कुर्बान जाइए, आपके पास होता मदद कर देते, घर में है मदद कर देते। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था, उलमा फरमाते कि 3-3 महीने गुजर जाते थे, अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। कई महीने?
3 महीने गुजर जाते थे, अल्लाह के रसूल के घर में चूल्हा नहीं जलता था। जेब खाली है, घर खाली है। सवाली आया दर पे बैठा है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, बिलाल, बिलाल कहाँ है? बिलाल दौड़ा आता, या रसूल अल्लाह आपने मुझे याद किया है। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, बिलाल ये सवाली मेरे दर पे आया है, बिलाल मेरे पल्ले तो कुछ नहीं है, ऐसा करो किसी से कर्जा लेकर इसकी जरूरत को पूरी कर दो, अल्लाह इंतजाम कर देगा, हम कर्जा अदा कर देंगे। हम उस रसूल की उम्मत है। यहाँ आलम यह है, बाज लोगों का, सब नहीं, बाज लोगों का कुर्सी में बैठा हुआ देखा कि मौलवी साहब आ रहा है चंदा करने, तो घुर्र से अंदर घुस जाए। अपना बेटा को बोला, जा दरवाजा देखो। मौलवी साहब पूछते नहीं, बापू यहाँ गए? बोले खेतों चले गई है। भाई अल्लाह का बंदा, आपके दरवाजे पे एक आलिम दीन गया है, सोचो, एक हाफिज कुरान गया है, एक इमाम गया है। आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरे दरवाजे पे एक आलिम दीन ने अपने कदम को रखा है। आपको तो चाहे वो 10 रुपया ही सही दे देते, नहीं था उनकी खिदमत करके दुआएं ले लेते। चंदा कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं थी। एक आलिम का कदम आपके घर पे पड़ जाना, आपके दरवाजे पे पहुंच जाना, ये बहुत बड़ी सादत की बात थी। ये दुनिया तो फानी है, फानी है कि नहीं है? अरे टाटा बिरला भी मरा है, टाटा बिरला मरा कि नहीं? अरे बोलो भाई, मरा कि नहीं मरा? और कुर्बान जाई जाएंगे, टाटा बिरला एक हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल, उसकी आधी कमाई, 3 पौवा कमाई अपने पास टाटा बिरला रखता था, 1 पौवा कमाई वो सदका करता था। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, वो सदका करता था। और यूं समझ लीजिए कि उनके मरने पर, अल्लाह अकबर कबीरा, कितने घरों का खर्चा टाटा बिरला अपने बल पर चलाता था, लाखों लोगों का। सदके की बरकत से अल्लाह ने उसके कारोबार में इतनी बरकत दी। अब देख लीजिए, हर चीज टाटा का है। खर्च करो मुसलमानों, सखी बनो, बखील मत बनो। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, सखी। और सुनिए, उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई सखी है लेकिन नमाज कम है, रोज़ा कम है, अमल कम है, लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि वो अल्लाह का दोस्त है। वो अल्लाह का, अरे बोलो भाई, दोस्त है। और जो बखील है, जो कंजूस है और कुर्बान जाओ, वो उसकी दोस्ती अल्लाह से हो नहीं सकती है। और बखील की दोस्ती अल्लाह से लग नहीं सकती, और सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती। एक नौजवान ने एक लड़की से कहा कि मीनी अमीर जी। बोला, ती अमीर जी? तो ठीक है, तो मैं ब्याह कर लूं। ती जब अमीर छी, मोग अमीर लड़का चाहिए। लड़का बोला, मी अमीर जी। शादी हो गई, शादी होकर लड़की को जब लड़का घर लेके आया तो देखा कि झोपड़ी। तो लड़की बोली, ती तो बोल लो कि मी अमीर जी। बोला, हाँ मी अमीर जी। तोर घर झोपड़ी छो, महल को आन, ती तो अमीर जी ना। तो लड़का बोला, मी अमीर जी, तबलीगी जमातेर अमीर जी नहीं। भाई अमीर है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस दिल जमी के साथ बैठे रहिए। 45 से 50 मिनट का वक्त हम आपसे लेंगे, हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरे बाद बहुत बड़े अल्लाह वाले तशरीफ़ फरमा है, बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ़ फरमा है, जिनकी तकरीर होगी, दुआ होकर के इंशाअल्लाह आप अपने घर को जाएंगे। हम सब मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको जहाँ वक्त मिले, जहाँ मौका मिले, फजर की नमाज पढ़कर ही सोना है। आपकी इजाज़त हो, ये मेरी आदत है कि कुछ कहने से कबल एक मतला, एक शेर सुना दे। अरे बोलो ना भाई, सुना दे। भोजपुरी सुनेंगे कि उर्दू सुनेंगे? क्योंकि दिल खैराबादी साहब इतना पिला दिए हैं कि शायद अगर प्यास नहीं होगी। लेकिन ये लालकुरी की सरजमीन है, ये उत्तर दिनाजपुर की सरजमीन है। बड़े बड़े अल्लाह वाले इस मजमे के अंदर में बैठे हैं। हमारी माँ बहनें
آپ بھی یہاں پر تشریف لائی ہیں, خدا کے واسطے آپ گفتگو نہ کرو. میری ماں بہنوں, তোমরা নি বাত নি করবো, বাত করনা আছে ঘর চলে যাব, আরাম সে ঘরত बैठे खूब बात करबो. इछान नी तोड़ते ने 4 बात. औरतों के लिए कई बात, अरे बोलो भाई. मेरी माँ बहनों, आपके लिए 4 बात, सिर्फ 4 बात कहेंगे. आपको 4 काम करना है. 4 काम करोगी मेरी माँ बहनों, जन्नत के 8 दरवाजे हैं. जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ. 4টা কাজ করে নিব, 4টা কাজ, বেশি কাজ আছে না. এটা আমল আসান, এটা কাজ आसान কাজ আছে अल्हम्दुलिल्लाह. 4टे काम करो मेरी माँ बहनों. पहला काम बता दें, अरे बता दें मेरी माँ बहनों, पहला काम खूब झगड़ा करो. नहीं झगड़ा नहीं करी. अब वो 4 बात बताएंगे इंशाल्लाह हम अल्हम्दुलिल्लाह. लास्ट तो मैं बताऊँ, 4 काम कीजिए. औरतों का 4 काम क्या है, वो औरतों का 4 अमल कौन सा है. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारी माँ बहनें करेंगी. जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहेगी अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा इंशाल्लाह. मैं बताने की कोशिश करूँगा. बस एक मतला, एक शेर आपकी समातों के हवाले. ए आमिना के लाल, ए आमिना के लाल, मदीना बुलाइए. ए आमिना के लाल, मदीना बुलाइए. मरने से पहले गुंबदे खजरा दिखाइए. मरने से पहले गुंबदे खजरा दिखाइए. आंखें तरस रही है जियारत के वास्ते. आंखें तरस रही है जियारत के वास्ते. एक दिन हुजूर ख्वाब में, एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाइए. एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाइए. अरे आमीन तो बोल दो. हम ये कलाम पढ़ रहे हैं, सब बोल रहा सुभान अल्लाह. इसको समझे में नहीं आ रहा कि कहाँ आमीन बोलना है, कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है. अरे मत हाथ दर्द जैसे टेबलेट खाबो ना कि गर्दने काटे फेंके देबो, बोले झमेला खत्म हो गई है. मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह. आपका जलसा बड़ा अच्छा जलसा है. मजमा बड़ा अच्छे अंदाज में आप जलसे को सुन रहे हैं. अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले. आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह. बस ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 45 से 50 मिनट के अंदर में गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी. पूरी तकरीर सुन के जाइएगा, दुआ करके जाइएगा इंशाल्लाह. हाथ उठाए दुआ करके जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह. सारा मजमा वादा कर लिया आपने कि दुआ करके जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह. और कबूलियत की वो घड़ी होगी, उस वक्त दुआ कबूल होगी. और एक बात याद रखना नौजवानों, जहां जहां दुनिया की दवाई दम तोड़ देती है वहां से दुआ शुरू होती है. इसलिए दुआ करो, दुआ करो, मांगो. दुनिया वालों से मांगोगे दुनिया वाला नाराज हो जाएगा. अल्लाह से नहीं मांगोगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा. आहा, अरे दुनिया वालों से मांगो तो दुनिया वाला नाराज हो जाएगा. दुनिया वाला उधर देखेगा, इधर भागेगा. बोले भाई वो जो खाली पैसा मांगो. बोलता कि नहीं बोलता? बोलिए. बोले फालतू मियाँ फालतू चाहिए, खाली टका मांगो, खाली टका मांगो. लेकिन कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा मांगना मुझसे मांग, मेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है. वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम. कुरान पढ़ो. मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो, मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा. मुझसे मांगता क्यों नहीं है?
میں تو دینے کے لیے بیٹھا ہوں. ارے قربان جاؤ, ارے میرا اللہ تو اتنا بڑا رحیم ہے, میرا اللہ اس کو بھی دے رہا ہے جو میرے اللہ کو نہیں مانتا ہے. ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں, بتاؤ اللہ ہمیں دے گا کہ نہیں دے گا؟ جو نہیں مانتا اللہ کو, اللہ اس کو دیتا کہ نہیں دیتا؟ بولو بھائی, ارے دیتا کہ نہیں دیتا؟ دیتا. اس کو دیتا کہ نہیں دیتا؟ اللہ اس کو بھی دے رہا ہے, اللہ یہودی کو بھی دے رہا ہے, اللہ نصرانی کو بھی دے رہا ہے, اللہ مشرک کو بھی دے رہا ہے, اللہ کافر کو بھی دے رہا ہے. ارے ہم تو مسلمان ہیں, نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہم اللہ کو ماننے والے ہیں. او قربان جاؤ, میرا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو. میرے رب کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اے بابو بوچھے جا بابو, واہ واہ بابو بیٹھ جا, الحمدللہ. دیکھیے جو بزرگ لوگ ہیں ان کا بھی احترام کیجیے گا. بابو کوئی جانا آنا مت کیجیے. اے بیٹا اے وہی بیٹھ جا, وہی بیٹھ جا بیٹا. اے دیکھیں چھوٹا سا بچہ یہ موبائل ہاتھ میں لے کر, بیٹا موبائل ہاتھ مت رکھیے, اتنا چھوٹے بچے کو موبائل مت دیجیے. الحمدللہ ابھی پڑھنے کا ٹائم ہے, ابھی تو تعلیم حاصل کرنے کا وقت ہے. چھوٹا بچہ اس کے ہاتھ میں بڑا موبائل, اللہ اکبر کبیرہ. یہ موبائل بڑے فائدے کا چیز ہے لیکن یہ نقصان والا بھی ہے. اب اس موضوع پر ہم نہیں بولیں گے, اس لیے نہیں تو پھر میرا موضوع بدل جائے گا. چھوٹا چھوٹا بچہ کے ہاتھوں میں موبائل ہے. ایک 90 سال کا بوڑھے میاں کھڑے ہو کر روڈ پہ بیڑی پی رہا تھا. بیڑی جانن نا, ادھر نہیں چلتا ہے, نور بیڑی بیڑی. وہ ایک آدمی بولا کہ حضرت ایک بات پوچھنا ہے. پوچھیں؟ بولا پوچھو. بولا حضرت جنتت بیڑی ملے بیڑی؟ بولے کیا؟ بولے منہ کا عادت ہے بیڑی پیوا. ہاں جنتت بیڑی ملبے لیکن جلوار تنے جہنم جاوا ہے بے, آگن وہی چان ملبے. بولا باپ, بوڑھے میاں 90 سال کا بیڑی پی رہا تھا. ایک میڈیا والا جا رہا تھا, دیکھا بوڑھے میاں, عمر دیکھی, بیڑی کا پی رہا ہے. گاڑی روکا, اب مائک بھرا دیا. بوڑھے میاں, میڈیا والا سب آیا کہاں سے, اس لوگ خبر کیسے ہو؟ بولے کہ چچا آپ کی عمر؟ بولا بیٹا 90-100 سال ہوگی. بولا اب یہ بیڑی کیا پی رہے ہیں؟ معلوم نہیں یہ بیڑی پینے سے پھیپڑا خراب ہو جائے گا, آپ کی موت ہو جائے گی. بوڑھا بولا کہ بیٹا مورنے عادت لگے گئی ہے, نی پیو نے چینی ملو. تو میڈیا والا بولا کہ آپ کو کوئی روکتا ٹوکتا نہیں ہے؟ تو بوڑھے میاں بولے کہ جتنے آدمی ٹوکتے تھے وہ سب اوپر چلا گیا, اب بہت دن کے بعد تم ٹوکے ہو, اب تم دھیان رکھنا. میڈیا والا وہی بے ہوش ہو گیا. بوڑھوں کا بھی دھیان رکھنا. تو میں یہ کہہ رہا تھا, میرا اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو, اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے. ارے بولو بھائی, اللہ سے مانگیں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ سے مانگو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا, ایک دم نہیں بنانا ہے. اور میرا رب ہے, میرا رب ہے, میرے رب کا دروازہ ہے. اور قربان جاؤ, جب میرے اللہ نے کہہ دیا ہے تو انشاءاللہ میں اپنے اللہ سے مانگوں گا, میں اپنے رب سے مانگوں گا. میرے رب کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. معزز سامعین کرام, یہ مسجد کا جلسہ ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے. کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. کون اللہ؟ جس کی شان یہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنۃ ولا نوم. وہ کون اللہ؟ وہ اللہ ہے, هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. وہ میرا اللہ. کون اللہ؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. میرے اللہ کی شان ہے. کتنا ہوا؟
اب آگے کا کیا ہوا ہے لاسٹ میں بتانے کی کوشش کروں گا. تو جو سخی ہے وہ سخاوت کر کے رہے گا چاہے جو ہو جائے. لیکن سنو جو کنجوس ہے جو بخیل ہے اور قربان جاؤ یہ تقریر سناؤ مت, یہ تقریر کھلا کے اس کو الٹا دو, اٹھنی نہیں دے گا. دے گا؟ ارے بولو بھائی دے گا؟ اٹھنی نہیں دے گا وہ. یہ تقریر سنائیے مت, تقریر کھلا کے اس کو بے ہوش کر دیجیے آپ. ہوش آئے گا بدن جھاڑے گا گھر چلا جائے گا, اٹھنی نہیں دے گا. میرا رب سخی ہے, میرا رب سخی ہے. میرا رب کہتا ہے میرا بندہ قربان جاؤ میرے یہاں اس کا بدلہ ہے. کیا بدلہ ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. میرا اللہ کہتا ہے میرے یہاں ایک نیکی کا بدلہ 10 ہے. ایک نیکی کا بدلہ کتنا ہے؟ 10 ہے. اور سنو مسلمانوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ 1 روپیے کے بدلے میں 7 لاکھ عطا فرمائے. کتنا دے گا؟ اللہ کے رسول نے کتنا کہا؟ 1 روپیہ کے بدلے میں 7 لاکھ. اے مسلمانوں سنو, یہ زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان جھک سکتا ہے, پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے, سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے, لیکن فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا ہے. تو انشاءاللہ سخی بنیں گے؟ ارے بولو بھائی بنیں گے؟ تو چلو انشاءاللہ جنت میں گھر بناتے ہیں, جنت میں محل بناتے ہیں. اور قربان جاؤ جنت میں محل بناتے ہیں. کیسے پتا چلا؟ کیسے پتا چلے گا؟ دنیا میں ہم کون سا عمل کریں گے جو جنت میں اللہ میرا گھر بنا دے گا, اللہ جنت میں میرا محل بنا دے گا. سنو سنو, صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. یہ عثمان کون ہے؟ یہ عثمان وہ ہے جو داماد مصطفیٰ ہیں. کون عثمان؟ وہ عثمان وہ ہے جو بہت بڑے سخی تھے. کون عثمان؟ یہ عثمان وہ ہے خلیفہ سوم ہے. اور قربان جائیے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کے بعد دیگرے 2 بیٹیوں کو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیا. کیا بیٹیوں کو دیا؟ بولو بھائی, ارے بولو بھائی. 2 بیٹیوں کو نکاح میں دیا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, روایت فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ, کہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے گا, بہترین گھر بنائے گا. اور قربان جائیے اللہ کا وعدہ کیسا وعدہ ہے. ایک بار لال پوری کی مسلمانوں سنو, ہمارا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے, آپ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے, لیکن میرا رب کہتا ہے ان وعد اللہ حق. میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ پکا وعدہ ہے, میرا وعدہ سچا وعدہ ہے کہ جو دنیا میں میرا گھر بنائے گا ہم اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائیں. انشاءاللہ محل بنائیں. کتنے لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھائیں. انشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ سارا مجمع تیار ہے. میری ماں بہنوں آپ بھی تیار رہنا, یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے. میری ماں بہنوں موت آ جائے گی, یہ گھر والا زیور کھول کر الماری تجوری میں رکھ لے گا. آج موقع ہے, اپنے زیور سے اللہ کا گھر بنا دو, اللہ تیرا گھر جنت میں بنا دے گا. پھر جنت میں اللہ بہترین زیور سے تمہیں آراستہ کر دے گا, ہیرے جہرات کا زیور پہنائے گا. تو میرے دوستوں میرے بزرگوں, ہے کوئی ایسا سخی, ہے ایسا کوئی نوجوان, ہے ماں کا چہیتا بیٹا, ماں کا لاڈلا بیٹا, ماں کا کلیجے کا ٹکڑا بیٹا, اس میں دوہرا ثواب ہے. اگر یہ عمل ماں باپ کے نام پر, دادا دادی نانا نانی مرنے والوں کے نام پر اگر کرتے ہیں آپ, تو جیسے ہی آپ نے نیت کی, مرنے والا قبر میں لیٹا ہوا ہے, مر گیا ہے, اللہ پاک قیامت تک یہ مسجد جب تک اس دھرتی پر قائم رہے گی اللہ پاک قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. اور سنو, اللہ نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ اللہ آپ کو اس گھر کی چابی آپ کے ہاتھوں میں اللہ پاک عطا فرمائے گا اور جنت کے اندر میں داخل فرمائے گا. اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستوں, ہم زیادہ نہیں, مجھے صرف 5 آدمی اس مجمع کے اندر میں چاہیے. مجھے 5 آدمی چاہیے. আমি ওনার জন্য 10টা দোয়া করব. কত দোয়া করব? ارے کتنا دعا کریں بولو نا. 10 دعا کریں گے. میں مسافر ہوں,
मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती है। कुर्बान जाइए, जनाब दिल खैराबादी साहब मुसाफिर हैं, जो मुसाफिर हैं मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती, बीमार की दुआ रद्द नहीं होती। कुर्बान जाइए, उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। है कोई ऐसा पहला सखी जो अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद में बना दो, इंशाअल्लाह तुम जब मरोगे इंशाअल्लाह तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे नाम से इंशाअल्लाह मस्जिद बनाएगा। ऐ मुसलमानों, ये अल्लाह का बदला है। आज अपने माँ बाप के साथ आप जैसा करोगे आपका बेटा भी आपके साथ वैसा ही करेगा। है कोई मुखिया, है कोई सरपंच, है कोई पार्षद, है कोई मेंबर, है कोई मास्टर, है कोई वकील, है कोई डॉक्टर, है कोई किसान, है कोई ताजिर, अपने माँ बाप के नाम पर इंशाअल्लाह इस मस्जिद के अंदर में 5000 रुपए देने वाला पहला सखी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाअल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ। मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, कम से कम 5 आदमी तैयार होना चाहिए मेरे भाई। है कोई सखी अपनी माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, जो अपने माँ बाप के नाम पर इंशाअल्लाह 5000 টাকা দিতে পারেন ইনশাআল্লাহ। আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করব। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। देखिए नगद है, नगद दे दिए, नगद नहीं है तो इंशाअल्लाह फोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, आप यहाँ भी दे सकते हैं, वो भी सूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह नाम लिखा दे, कल ला कर कमेटी वालों के हवाले कर दें। माशाअल्लाह, देखिए प्रथम जन हो गेलो। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। कुछ बढ़ा दे, कुछ बढ़ा। माशाअल्लाह 11 का 11 ऐ माशा बोल दिया। 11,000 रुपये हमारे डॉक्टर इजहार साहब अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 11,000 रुपये अपने माँ बाप के इसालो सवाब की नीयत से इस मस्जिद में ताउन किया है। अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब की इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन अगर हयात से उनकी उम्र में बरकत दे। अल्लाह इनके मरहूमीन मरहूमात को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। अभी भोजपुरी सुना दे रहे आपको हम, ये 2 आदमी हो गए। जनाब भाई मोहम्मद अंजारुल हक साहब अल्हम्दुलिल्लाह 1000 ईंट, 1000 ईंट की कीमत कितनी है? अरे बोलो भाई, 11,000 रुपए। हे तीसरा आ गया। हाँ नहीं, बहुत बड़ी बात है भाई, कम बड़ी बात नहीं है। हाँ अच्छा देखिएगा, चंदे वाली बात जहां आ जाएगी ना, हिला दीजिएगा आप उसको। मास्टर मुमताज आलम साहब, मास्टर मुमताज आलम साहब माशाल्लाह 1000 टका। जुमा में आदमी जुमा पढ़ने जाता है, डब्बा घूमता है ना चंदा के बाद। अरे नमाज के बाद डब्बा घूमता है ना भाई। अरे बोलिए ना भाई, आपके इलाके में घूमता है ना डिब्बा, चंदे का डिब्बा। तो एक आदमी कंजूस आदमी था, वैसे ही जेब में हाथ ढुका कर सिक्का ढूंढ रहा था, सिक्का ढूंढ रहा था। और सिक्का ढूंढते 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 निकाला, सिक्का निकाला ना तो 2000 का नोट भी गिर गया साथ में। तो सिक्का डाल दिया डिब्बे में। तो पीछे जो आदमी था ना, वो 2000 का नोट देख लिया कि गिर गया बेचारे का। तो वो उठाया, उठा के उसको दिया। तो देखने लगा, बाप इतना बड़ा पैसा वाला है ये, 2000 टका दे रहा है। तो 2000 रुपये लेके डिब्बा में डाल दिया। तो पीछे वाला बोला कि अरे भाई एहतियात से पैसा निकालो, तुम सिक्का निकाल लेते, 2000 का नोट तुम्हारे पॉकेट से निकल गया। वो वही बेहोश हो गया। कुर्बान जाओ बखील। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कुर्बे क़यामत बखीलों के पास दौलत होगी। कुर्बे क़यामत बखीलों के पास दौलत होगी। लोग पैसा को नहीं छोड़ेंगे, टाका जमा करके रखेंगे। लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करने को तैयार नहीं होंगे। मुसलमानों, कफन में जेब नहीं होता। जेब है? अरे कफन में जेब है। और कुर्बान जो कब्र में तिजोरी है। आप क्या चाहते हैं कि हम मर जाएंगे, मेरा बेटा कुरान पढ़ पढ़ कर दुआ करेगा मेरे लिए, मेरी बीवी कुरान पढ़ पढ़ कर दुआ करेगी, मेरा भाई कुरान पढ़ पढ़ कर दुआ करेगा। अरे जिंदा में कोई किसी को ये नहीं पूछता है, मरने के बाद कौन पूछेगा? पूछता है? अरे जिंदा में कोई किसी को पूछता है? इसलिए दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी कर लो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतरीन सदका रहती जिंदगी जो अपने हाथों से
अल्लाह के बैंक में जमा कर दे, वो सबसे बेहतरीन सदका है। माशाअल्लाह जनाब इजहारुल हक भाई ने 1000 ईंट दी है, अल्लाह उनके दान को कबूल करे नो, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में 1100 रुपए जनाब माशाअल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में कारोबार में अल्लाह बरकत दे, अल्लाह उनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। भाई दूसरा हो गए माशाअल्लाह, हम 5000, मेरा सवाल 5000 है, आप 10,000 20,000 50,000 1 लाख भी दे सकते हैं, आपके ऊपर में है। अल्लाह जिसके पैसे को कबूल करेगा ठीक वो पैसा मस्जिद में लग जाएगा, मदरसे में लग जाएगा। अल्लाह जिसको तौफीक देगा ठीक वो इंसान खड़ा हो जाएगा। ये अल्लाह की तरफ से है, इसमें कोई मेरा कोई कमाल नहीं है, आप दे रहे हैं आपका भी कोई कमाल, ये सब मेरे रब की तरफ से है। मेरा रब जिसके पैसे को, जिसको इशारा, जिसको तौफीक दे देगा ठीक वो इंसान नेक अमल कर लेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर अमीर साहब 5000 रुपए बेल्ट माशाअल्लाह जनाब मेंबर अमीर साहब अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 3 जन हो गए, अल्लाह अमीर भाई के, अमीर साहब के ये दान को कबूल करे नो, अल्लाह उनको उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान मामूल में खैर में खैरियत में बरकत दे, अल्लाह अमीर साहब के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। 3 जन हो गए माशाअल्लाह, अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, 5000 टका दीते पर इंशाअल्लाह, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, हमारी माँ बहनें भी कोई दे सकती है, 5000 टका लिखवा सकती है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है, अरे कोई मास्टर साहब, कोई वकील साहब, कोई डॉक्टर साहब है, ये पैसा है आया नहीं आया है कोई आगे। चौथे नंबर डॉक्टर बाबुल साहब हाटगांव 1000 रुपए। मरहूम बुद्धू 5000 माशाअल्लाह, मरहूम बुद्धू बुद्धू जी। बताइए, सोचो मुसलमानों, मरहूम को अल्लाह करवड़ करवड़ जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा डॉक्टर बाबुल अल्हम्दुलिल्लाह साहब 1000 रुपए माशाअल्लाह। अरे कत जन হলো, अरे बोलুন না, 4 জন, হাতের কটা উंगली, दिन रात मिले कौटा नमाज, 5टे नमाज अल्हम्दुलिल्लाह। एक्स्ट्रा उसके लिए दुआ होगी, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना देगा इंशाअल्लाह। 5वें नंबर पे कोई सखी है, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब मैंने जन्नत खरीद ली, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना। 5वें नंबर पे एक सखी, मैंने कहा कि मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, 5000 टका दीते पारे इंशाअल्लाह, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर, दादा दादी के नाम पर, या मुसलमानों अपने ही नाम पर मस्जिद बना लो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो अमल है, ये वो सदक़े जारिया है, इंशाअल्लाह आप मर जाओगे। जनाब महबूब भाई है, मिंबर महबूब साहब लालकुड़ी, हिफ्जुर रहमान। जनाब मास्टर रिकी साहब नहीं है क्या, निम्बर मिस्टर साहब, मास्टर साहब, इसी तरह से जनाब मुश्ताक भाई साहब, डॉक्टर हन्नान साहब, ये लालकुड़ी वाले का है, सुफिया खातून, मरहुमा सुफिया खातून, मुश्ताक भाई दोस्त वाले 10 बोरी सीमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए 5वें नंबर पे हमारी एक बहन ने हिस्सा लिया है, मरहुमा सुफिया खातून के नाम पर 10 बोरी सीमेंट। अल्लाह मरहुमा को करवड़ करवड़ जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब मास्टर रिकी साहब 1100 रुपए। माशाअल्लाह, हमारे मास्टर विक्की साहब ने भी 1100 रुपए दान किया है। अच्छा कौतो जन हो मास्टर रजी अहमद नहीं है क्या? भाई 5000 वाले कितने लोग हुए, बोलो ना भाई।
5 आदमी हो गए। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में बनाया है, आसमान को 3 दिन में बनाया है। इंशाअल्लाह ये 6 दिन हुए, अल्लाह ज़मीन व आसमान के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पे ये देखिए नौजवान आ गया, माशाअल्लाह मास्टर परवेज साहब। भाई वाह, ये देखिए आ रहा, ये नौजवान आ गया 6ठे नंबर पे। आने दो भाई, आने दो, कुर्सी हटाओ जल्दी, आने दो। ये देखिए नौजवान को मजमे को फाड़ता हुआ, चिरता हुआ, दहाड़ता हुआ आ रहा। माशाअल्लाह, आ जाओ। माशाअल्लाह। जैनुल भाई लालपुरी के रहने वाला 1000 ईटा। माशाअल्लाह, देखिए लालकोरी के जनाब भाई जैनुल साहब, अल्हम्दुलिल्लाह लालकोरी के रहने वाले जैनुल भाई ने 1000 ईंट, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हम 5000 मांग रहे हैं, देने वाले 10-10 हज़ार रुपये, 11-11 हज़ार रुपये दे रहे हैं। अल्लाह जैनुल भाई के दान को कबूल करे नो। अल्लाह जैनुल भाई की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, घर में बरकत दे। अल्लाह जैनुल भाई के माँ बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। 6 जन हो गेलो, कत जन होलो? 6। जनाब निम्बर सद्दाम साहब कहाँ है भाई? भाई जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, 7वें नंबर पे है कोई, अल्लाह जहन्नम का 7वां दरवाजा बंद कर देगा इंशाअल्लाह। 5000 रुपए देने वाला 7वें नंबर पे मेरा एक भाई आ रहा है। ये देखिए, ये आ गया माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह भाई वाह, 5 बोरा सीमेंट। भाई माशाअल्लाह। की नाम भाई? जाहिद आलम। जाहिद आलम माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिद आलम ने अपना नाम इस फहरिस्त में शामिल कर दिया। अल्लाह जाहिद बाबू के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। 7 जन हो गेलो। जन्नत के कई दरवाजे हैं? 8। 8वें नंबर पे एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान, कोई मास्टर हो, कोई वकील हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई जमींदार हो, कोई दुकानदार हो, कोई मकान वाला हो, कोई औलाद वाला हो, है कोई ऐसा सखी, है ऐसा कोई सखी, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर बनाएगा। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन इंशाअल्लाह मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों, तुम्हारे पास जो चीज भी है ये खत्म हो जाएगी, जो भी चीजें हैं ये खत्म हो जाएगी, मेरे पास जो कुछ भी है ये बाकी रहे। बेशक बेशक। मुश्ताक भाई कहाँ है भाई? मुश्ताक भाई, मास्टर रजी साहब, डॉक्टर नाजिर एक साहब। नौजवान और आ रहा, आने दो। ए देखो नौजवान, बहुत जल्दी बैठ गया। नहीं नहीं आ रहा भाई, आ रहा, आएगा भाई, यहीं आ रहा भाई, आने दे दो, रास्ता दे दो। माशाअल्लाह, ये बैठने वाला नौजवान नहीं है, इसका चेहरा बता रहा है। माशाअल्लाह, निम्बर सद्दाम 2000 ईट। माशाअल्लाह भाई, दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मिंबर सद्दाम साहब अल्हम्दुलिल्लाह 2000 ईंट, 2000 ईंट मिंबर सद्दाम साहब ने कहा। अल्लाह हमारे मिंबर साहब, मैं तो कहूँगा कि वो आज मिंबर हैं, अल्लाह कल को उसको मुखिया बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। मुखिया बनेगा तो 5000 ईंट देगा ना। अल्लाह उनके दान को कबूल करे, अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ओहदे में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले। फोन पे करेंगे भाई, दीजिए 5000 रुपये फोन पे। 5000 की 10,000, 5000। हाँ 2000 रुपये पहले भी दिया। देखिए 2000 दिल खैराबादी बाबू को दिए हैं, अब फिर 5000 रुपये फोन पे कर रहे हैं। ए बाबू फोन पे ले लो, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कत जन होलो? 9 जन हो गेलो, अल्हम्दुलिल्लाह 9 जन हो गेलो माशाअल्लाह। बस आखिरी आदमी चाहिए, 10 और बस। अशरे मुबशरा की तादाद 10 है, अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। लास्ट कोई सखी है? अरे कोई सखी है, कोई सखी है? ए देखिए नौजवान, मैंने कहा था ना आपको, देखिए जो देने वाला वो देकर रहेगा मेरे भाई, जो देने वाला वो देकर रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह। आजा बेटा, इधर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। माशाअल्लाह, ये भी फोन लेके आ रहा, फोन पे करेगा। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा की नाम? 2000। अच्छा माशाअल्लाह, 2000 रुपये ये नौजवान देगा। ये बहुत बड़ी बात है हमारे नौजवानों। कोई होटल में आप बैठते होंगे, 1000-2000 ये रुपए तो नाश्ता करके, खाना खा करके, गुटखा खा के थूक देते होगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज कसम खुदा की अल्लाह के घर में दे दोगे मेरे बच्चों, तो इंशाअल्लाह मेरा रब इसको पहाड़ बना कर तेरे सामने पेश कर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। आज दे दो, इंशाअल्लाह इसका अजर, इसका सवाब अपनी आंखों से यहाँ भी देखोगे, आखिरत में तो है ही। मास्टर शाहिद साहब नहीं है क्या? मास्टर शाहिद साहब 5000 रुपये।
माशाअल्लाह मरहूम मकबूल हुसैन के नाम पर 5,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मरहूम मकबूल हुसैन साहब को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। 500 ईट ये सब आ रहे हैं माशाअल्लाह लालपुरी माशाअल्लाह। के शमसुल 5,500 ईट माशाअल्लाह। देखिए जनाब भाई मोहम्मद शमसुल साहब अल्हम्दुलिल्लाह 500 ईट 500 ईट की कीमत 5,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अकबर भाई 5,000 रुपये माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अकबर भाई 5,000 रुपए। एक शेर सुना दें? जी अरे बोलो ना भाई, सुना दें। जी जी जी। क्या सुनाएंगे? भोजपुरी सुनाएंगे, उर्दू सुना दे, बांग्ला सुना दे? हाँ भोजपुरी। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैयबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। माशाअल्लाह अकबर भाई ने ये 5,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह दान किए हैं। अल्लाह इन्हें दान कबूल करे नो। अकबर भाई को उम्र में सेहत में जिंदगी में घर में बरकत दे। अकबर भाई के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। हजीरुद्दीन मोनी रंगे हाँ? 1,000 रुपये हजीरुद्दीन हजीरुद्दीन भाई माशाअल्लाह 1,000 टका। अल्लाह हमारे हजीरुद्दीन भाई के भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। मेरे भाई